जैसे आप सिलेक्शन रेट देखोगे कश्मीर से कितनी कम रहती है सिलेक्शन रेट, सो दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं पे लैक हो रहे हैं। अभी दूसरा इसमें बहुत ही लीडिंग फैक्टर है रिलेटेड टू दिस ड्रग एडिक्शन, दैट इज पेरेंटल इनअटेंटिवनेस। क्यूएनएस टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, मैं हूं शाहिद नज़ीर। बात करेंगे इस टाइम पे हमारे साथ महविश जुड़ गई है, सोपोर से ताल्लुक़ रखती है, एक एक्टिविस्ट हैं, साथ साथ में अगर हम बात करेंगे एक ऑथर भी है। ड्रग एक्टिविस्ट की जब हम बात करते हैं आपको समझ आया ही होगा, लेकिन इनके मुंह से ही सुनेंगे जो इनकी हालात ज़िंदगी है, जो ये इनकी जर्नी है, कहाँ से स्टार्ट हुई। ऑथर का जब हमने इनको टैग दिया तो हम समझेंगे कि वाकई में इन्होंने कैसा काम किया है, और हाल ही में एक बुक भी पब्लिश की है ब्लेम गेम के नाम से। बहुत शुक्रिया आपका क्यूएनएस टीवी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू शाहिद फॉर कनेक्टिंग विद मी एंड फॉर प्लानिंग दिस इंटरैक्टिव सेशन। बात करेंगे, एक ड्रग एक्टिविस्ट हैं आप, कैसे आया आपको दिमाग में, क्या आपको लग रहा है कि ज़रूरत है इस टाइम पे सोसाइटी में ऐसे काम को फ़राइज़ अंजाम देने की? देखिए, when I talk about my research journey, then it all started from some stories that I was covering during my first year of masters. And then I did this research. It was a volunteer research, and then I thought like I should write down the public conversations that I had during my this investigative period. And I wrote down the book, and the motive behind writing this book was basically about to show the people the perceptions of the common public. And when we talk about the drug addiction, what are the major factors that remain, the narratives that often remain unspoken. And मेरी भी वही कोशिश थी, I wanted to show that side of the society. And plus when we talk about addicts and drug dealers, oftentimes we see that people carry so much hatred towards them. And there were many reasons for writing this book Blame Game, but one of the reason was to show the people the sensitive side of them. And that's why I thought like I should choose this path. अगर हम रोशनी डालना चाहेंगे जो आपने ये पब्लिश की एक बुक ब्लेम गेम के नाम से, क्या लग रहा है आपको, किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखा और ये बुक को पब्लिश किया, और कैसे कंटेंट्स इसमें है? See, I will tell you something. Blame Game लिखने की, जैसे I told you, were various reasons. But the three reasons, the major reasons was on Blame Game that I have shown is it revolves basically around three questions. Okay, the first question is that how drug addiction started in Kashmir. The second question, what are the findings and the results of my research, and the third question was how we can stop the addiction process and what we can do to eradicate it. Now the first question is that how it started in Kashmir. Now I will talk about myself, that people often say that Kashmir has been a conflicted state, and I do not agree with this thing, but instead of that I would rather choose to say that Kashmir is an area that has been used to create conflicts for the interest of certain groups, for the interest between different political parties, and for the interest between different associations. But keeping away all the negative aspects, if we focus on the positive aspect, is that we Kashmiris have always shown the resistance. We have always been the strongest people, and we have never lost the touch with our goodness, with our moral values, with our ethical values, and which is why we have got the tag of Peerwar. Kashmir is often called it's Peerwar, okay? And now I will tell you, being as a sociology student and keeping the view of sociological analysis, I will tell you that from after 2014 post Tehreek period, I will say that Kashmir has gone through a transformation. And in sociology, being as a sociology student, हम इसको एक term से define करते हैं, that is transitional phase. And Kashmir has gone through this transitional phase. Now what happened in the transitional phase is we have crossed a bridge. Okay, the bridge was from, like I said, we were the people of ethical values, but then we started running towards the sensate culture, that is the culture of money, the culture of power, the culture of self-centeredness, the culture of self-centeredness. And in between this transitional phase, different social problems arise up हो गए सोसाइटी में. और जैसे कि हमने देखा कि sudden rise of crimes in Kashmir, जो कि हमने कभी सुना भी नहीं था. We heard of murders, harassments, rapes and suicides. And उसमें से एक social problem था, that is drug addiction. And
2014 के बाद हमने बहुत सारे केसेस इसमें देखे एंड उससे पहले सिर्फ चरस एंड अफीम वाज अ काइंड ऑफ थिंग जो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता था, बट 2014 के बाद हमने सडनली न्यू प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च होते हुए देखा। अब जो इसका दूसरा ब्लेम गेम का जो पार्ट है दैट इज़ कि आई विल से कि व्हाट आर द फाइंडिंग्स एंड द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर उस चीज़ में छुपा हुआ है कि दैट इज साइड कि इफ़ ड्रग एडिक्शन है दैट व्हाट थिंग्स, किन चीज़ों की वजह से ये कंटिन्यूसली ग्रो होता गया सोसाइटी में। तो उन चीज़ों में हम देखेंगे 3 मेजर फैक्टर्स हैं इसमें, जैसे कि सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड देन द वल्नरेबल एंड द सेंसिटिव साइड ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन इट, बी इट एडिक्ट्स और बी इट पेडलर्स। अभी हम इकोनॉमिक फैक्टर में बात करते हैं। सो द मोमेंट आई डिस्कस द इकोनॉमिक फैक्टर, द थॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम्स इन माई माइंड। अभी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं ना, देन कश्मीर इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयड स्टेट इन इंडिया। एंड अब इसके पीछे रीज़न क्या है? नाउ देयर आर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड डिबेट्स अबाउट इट एंड अ लॉट ऑफ वीडियोज आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, पीपल कीप टॉकिंग अबाउट इट। बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे एक एजुकेशनल स्टिग्मा है, दैट इज़ कि इफ़ यू हैव डन PhD, वो PhD वाले को शर्म आती है कहीं पे 15,000 की जॉब करने में। दैट मीन्स दे आर डायरेक्टली लिंकिंग एजुकेशन विद इकोनॉमी, एजुकेशन विद इनकम। बट आई हैव अ डिफरेंट बिलीफ ऑन दैट। वो मेरा ऐसा है कि जैसे आई हैड अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस विद both peddlers and addicts, and when I ask them this question, that is कि how did you get involved and why did you get involved, the answer that I get from them is बस हो गया, ठीक है। And some people say कि I got involved and then they start this blame game like because of these reasons, blah blah reasons. अब जो लोग कहते हैं ना बस हो गया, that means कि our youth don't have a clear vision. Now what do I mean by clear vision is that कि we do not know कि हम लोगों का एक मतलब we do not know critical thinking ना, skill based education, या फिर we don't have that clear vision कि हम कैसे, एक होता है ना कि एक इनकम मॉड्यूल कैसे हम बनाए अपना। बस हमारा एक स्कोप बेस्ड वैल्यूएशन ऑलरेडी होता है, एक ग्राफ ऑलरेडी सेट होता है, उसको हम फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ती गई, या फिर मैं कह सकती हूँ एक पॉलिटिकल फेलियर भी है सोसाइटी में। जैसे आपने पिछले इलेक्शंस में भी देखा होगा, डिफरेंट मैनिफेस्टोज जो हैं वो डिज़ाइन होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ से। फिर उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप देखोगे दे से कि वी विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, द वर्ड दे यूज प्रोवाइड, it creates a subconscious impact in every youth कि they will provide, but employment is something that is not provided, it is something जो हमें grab करना है। we have this inability in us to grab the opportunity. now opportunity कैसे grab की जाती है? that is by being skilled, ठीक है। we are living in a knowledge society. जो education है ना, current system of education is only promising you that in this knowledge society I will give you a vision where you will be able to differentiate between good and bad. it is not promising you of the economy, ठीक है। अभी जो इनकम है दैट इज समथिंग जो हमें बाकी, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कंपटीशन लेवल कितना मतलब है हाई, बट वही कश्मीरी जो यूथ है ना, इंक्लूडिंग नॉट ओनली अबाउट देम बट यू एंड आई, ठीक है, हम कितना उस कॉम्पिटिटिव लेवल में हमेशा पीछे रह जाते हैं। जैसे आप सिलेक्शन रेट देखोगे कश्मीर से कितनी कम रहती है सिलेक्शन रेट, सो दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं पे लैक हो रहे हैं। अभी दूसरा इसमें बहुत ही लीडिंग फैक्टर है रिलेटेड टू दिस ड्रग एडिक्शन, दैट इज पेरेंटल इनअटेंटिवनेस, ठीक है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय पेरेंटल इनअटेंटिवनेस इज दैट कि जब भी कभी आई विल गिव एन एग्जांपल, ठीक है, जब हम कभी आर्मी रिक्रूटमेंट देखते हैं उसके बाद देयर इज़ अ ट्रेनिंग पीरियड फॉर आर्मी पीपल, ठीक है। उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान उनको मतलब ना एक बहुत ही टफ फेज से गुजारा जाता है, जैसे दे हैव टू गो थ्रू लाइक 10 days ऑफ हंगर, उनको बर्दाश्त करना होता है, या फिर इफ़ दे गेट इंजर्ड ना देन दे हैव टू लाइक उनको मतलब ना एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं होती है, दे जस्ट टीच देम हाउ टू क्योर दैट, हाँ, हाउ टू सर्वाइव, बेसिकली द सर्वाइवल मोड, ठीक है। बट करंट अगर हम देखेंगे ना यहाँ पे मतलब ना कश्मीर में, यू विल सी कि पेरेंटिंग के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज कि या तो एक्सेसिव बर्डन होगा, या तो फिर आप देखोगे कि एक्सेसिव कंफर्ट लेवल दिया जाएगा। और इसकी वजह से फिर जो यूथ होती है ना अभी की, अगर आप देखोगे इतनी सेंसिटिव जनरेशन बन गई है, थोड़ा छोटा सा माइनर इनकन्वीनियंस आई विल कमिट सुसाइड, छोटा सा माइनर इनकन्वीनियंस डिप्रेशन, छोटा सा माइनर इनकन्वीनियंस स्ट्रेस, ड्रग एडिक्शन। अभी पेरेंट्स इसमें कैसे लैग कर जाते हैं, या फिर उनकी वजह से ड्रग एडिक्शन कैसे प्रमोट हो जाता है कि हम उनको कभी नहीं सिखाते हैं कि हाउ टू फेस द कैलेमिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। वी डू नॉट टीच देम कि सपोज इफ समबडी इज इन्वॉल्वड इन इट,
उसके नेबर्स को पहले पता चल जाता है, पेरेंट्स को पता नहीं चलता है तब तक जब तक पूरी बात बिगड़ चुकी होती है। अभी इसमें मैं आपको बोलूँगी हाउ कैन वी स्टॉप दिस एडिक्शन, दैट इज़ बाय ना सोशल एक्सेप्टेंस, बाय मेडिकल हेल्प, बाय कम्युनिटी हेल्प। अब सोशल एक्सेप्टेंस में कैसे हो जाता है, जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेट्रेड इन पीपल्स हार्ट related to them, कि we just consider we have completely abandoned them by saying कि मतलब ना हम इनको टैग्स देते हैं जैसे जर्सी है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। वी डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नोबडी इन दिस वर्ल्ड वाज बोर्न एज अ क्रिमिनल, ठीक है। देयर हैपेंड अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स इन देयर लाइफ दैट मेड देम अ क्रिमिनल, दे वर नॉट अ बोर्न क्रिमिनल। एंड ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, देन वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैम, ठीक है। तो सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होती है। जैसे आप देखोगे पुलिस के साइड से व्हेनेवर दे कैच एनी ड्रग पैडलर, द थिंग दैट दे डू इज़ कि उनकी जो पिक्चर्स है वो ओपनली सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं। अभी 22 साल का लड़का होता है या फिर 25 साल का लड़का होता है, उसके बाद उसको सोसाइटी से एक हेट्रेड देखने को मिलती है। फिर वो सोचता है कि चलो अब तो मुझे हेट करने ही लगे, अभी तक मैं चोरी चोरी ड्रग पैडलिंग करता था, नाउ आई विल डू इट ओपनली। सो वहाँ पे हम सोशल एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते हैं। नाउ देन देयर इज़ कम्युनिटी हेल्प, ठीक है। कम्युनिटी हेल्प में हम देखेंगे कि हर एक मोहल्ला लेवल पे अगर देखेंगे यहाँ कश्मीर में पर्टिकुलरली, हमें पता होता है मोहल्ले में कौन सा किस घर की कौन सी हालत है, ठीक है। नाउ कम्युनिटी हेल्प हम कैसे उनको दे सकते हैं, बाय क्रिएटिंग फंड्स, ठीक है। सपोज इफ वी नो किसी घर का बेटा इज इन्वॉल्व इन ड्रग्स, व्हाट वी कैन डू इज कि वी हैव टू सी कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। इज़ देयर एनी, क्या रीज़न पॉवर्टी मत है जिसकी वजह से ही गॉट इन्वॉल्व इन ड्रग पैडलिंग, क्या हमें मत इसकी कोई हेल्प करने की ज़रूरत है। देन देयर इज़ मेडिकल हेल्प। मेडिकल हेल्प में वी डू नॉट हैव रिहैब सेंटर्स। कैन यू टेल मी बारामूला में ऐसा कोई रिहैब सेंटर जो मेडिकल शॉप की तरह है जहाँ पे इजीली ओपनली हम जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं? नहीं है, क्योंकि अभी भी एक सोशल टैबू है उस रिलेटेड। सो दीज आर द रोकना चाहेंगे आपको, जैसे कि आप अभी बता रही थी रिसर्च बेस्ड आपका सारा कुछ है, चाहे आपकी बुक पब्लिश है या आप ड्रग एक्टिविस्ट के नाम से जाने जाते हैं, तो क्या लगता है आपको कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं मेनली जो शायद हमारे जो यंगस्टर्स से ज़्यादा इस ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं? देखो, मैंने अभी आपको बोला दैट्स अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने अभी बोला हमारे जो कश्मीर में ना, दैट इज़ हैपनिंग कल्चरल एग्रेशन। कल्चरल एग्रेशन में मैंने आपको अभी बोला कि वी डू नॉट नो कि हाउ टू प्रोसीड विद थिंग्स, वी डू नॉट नो हाउ टू अंडरस्टैंड थिंग्स। अब यूथ को देखोगे, ये था अगर 30 साल का कोई बच्चा होता है उसको तब बोला जाता है कि अब इसको करियर पे ध्यान देना है, मतलब ना उसको समझ नहीं आता है हाउ टू लीड माई लाइफ, हाउ टू मतलब ना हाउ टू स्ट्रगल, हाउ टू हसल। वी डू नॉट नो। अगर फिर छोटा सा भी कुछ हो जाता है, वो ये जैसे सपोज कोई एडिक्ट कैसे बन जाता है, जब वो बाहर फ्रेंडशिप सर्कल में होता है, तो उस टाइम पे वो जब बाहर होता है उसकी फैमिली को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे बचपने में हम एक बच्चे का ख्याल रखते हैं कि इसको कौन फ्रेंड है, ये किसके साथ चल रहा है, व्हाट इज़ ही ईटिंग, व्हाट इज़ गुड फॉर हिम, कौन सी चीज़ इसके लिए बेहतर है। उसी तरीके से अगर आप डेटा उठा के देखोगे, आप देखोगे कि 13 साल के 11 साल के बच्चे जो हैं, तो दीज पीपल आर एडिक्टेड, किड्स है वो, दे आर एडिक्टेड एंड दे आर इंजेक्टिंग हीरोइन इन देयर बॉडी। तो उस टाइम पे आप किसको पकड़ोगे, बच्चे को कि पेरेंट को? because parent is somehow responsible for all of this now, because he does not keep a constant check on them. अभी दूसरा फैक्टर मैंने अभी आपको, अगर आप मुझसे पूछोगे ना महविश मुझे एक चीज़ बोलो जिससे हम ड्रग एडिक्शन को रोक सकते हैं, मैं कहती हूँ पेरेंटिंग पे फोकस करो। जैसे हम लोगों के साथ जैसे पेरेंटिंग थी ना, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग, वो सबसे बेस्ट पेरेंटिंग। Then you believe that कि पेरेंट का एक जो रोल है इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है। एग्जैक्टली। और जहाँ पे भी मेरे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, जहाँ पे भी मेरी टीम काम करती है, वी नेवर टॉक टू स्टूडेंट्स। जैसे कहते हैं कॉलेजेस में आप अवेयरनेस प्रोग्राम करो, स्कूल्स में करो, मैं कभी नहीं करती, बिकॉज इट क्रिएट्स क्यूरियोसिटी इन देयर माइंड्स कि लेट्स सी ये क्या होता है ड्रग्स। सो द जो मेन वर्किंग एरिया है ना मेरा या जो मेरी टीम का है, दैट इज़ पेरेंट्स पे। हम जहाँ पे भी काउंसलिंग सेशन रखते हैं वो इनवाइट पेरेंट्स के। सो क्या लगता है आपको, हाउ वी कैन रिड ऑफ दिस इन आवर सोसाइटी? क्या वैसे आपने कुछ मतलब आपने कुछ बनाया है? By providing 3 things, that is social acceptance. We try to engage more and more people. We try to teach them कि इनके साथ कैसे behave करना है, how to give them that affection and warmth. How जैसे I'll tell you, I was just scrolling on Instagram last night and I just saw उस पे मुझे एक drug addict ना उस पे ऐड करके है, he's a recovered addict, he has now recovered completely, but उसने एक पोस्ट अपनी स्टोरी पे चढ़ाया था और उसमें एक स्टेटमेंट था कि people give me more drugs than hugs.
सो ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है कि फिर मैं उस स्टेटमेंट को कम से कम 5-10 मिनट के लिए आई वॉज कीनली ऑब्जर्विंग इट कि ये इस बच्चे ने कितनी कितनी बार इसका इमोशनल ब्रेक डाउन हुआ होगा जहाँ पे सोसाइटी इसको वो हेल्प ऑफर नहीं कर पाई. सो समहाउ दे नीड अस. और हमेशा याद रखना होता है जिस सोसाइटी इज़ लाइक ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइज्म. ठीक है, सपोज अगर इसमें से एक, जैसे इफ़ आई हैव पेन इन माई फिंगर, आई विल फील इट ऑल ओवर माई बॉडी. एंड इसी तरीके से इफ़ अगर हमारी सोसाइटी का एक भी यूथ स्ट्रगल कर रहा है ना, इट विल समहाउ इम्पैक्ट द होल सोसाइटी. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दैट. एग्जैक्टली ऐसे ही बनता है एक माहौल जिसको Exactly. एनवायरनमेंट बोलते हैं कि एक ड्रग पैडलर होता है आपने तो एक एनवायरमेंट वर्ड यूज Yeah, किया. exactly. अब मैं इस पे बोलूँगी, आप जब भी बच्चा 13 या 14 साल का हो जाता है ना, वो जिस पेरेंट्स से कि अब ये खुद सीखेगा, पर दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो एनवायरमेंट वैसा नहीं है जैसे पहले होता था. अभी अगर इस बच्चे को एक्सपोज करेंगे एनवायरमेंट में, तो ये वहाँ से इंस्पिरेशन लेके नहीं आएगा, ये वहाँ से गंदी चीज़ें सीखेगा, बिकॉज वी हैव पोल्यूटेड द एनवायरमेंट. सो समहाउ वी आर द रिस्पॉन्सिबल. एंड अभी हमें ही करना. एंड मैं हमेशा कहती हूँ जो ये ड्रग एडिक्शन है, इट इज़ द रिपरकशन ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर जो हमने बिल्ड किया है. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज सोशल इंजीनियरिंग, व्हिच So- इज वेरी इंपॉर्टेंट. Exactly. No, we have to be equally responsible. Exactly. है ना सोसाइटी में. तो हमें Exactly. किसी स्पेशली आप पे नहीं थामना है कि नहीं आप करके दिखाएंगे. We have to be responsible Exactly. equally. और क्या मैसेज आप पुट फॉरवर्ड करना चाहेंगे एट लास्ट? सी एट लास्ट मैं यही चीज़ बोलूँगी कि वी हैव टू प्रोवाइड कम्युनिटी हेल्प. मैं हर एक मोहल्ले में जहाँ जहाँ पे भी मैंने विजिट किया, मैं हमेशा कहती हूँ क्रिएट फंड्स. जैसे आपने सौलिया खान का भी वीडियो थे जहाँ पे उसने बोला कि मस्जिद इतनी बड़ी बनाएगी या कारपेट 1-2 लाख के होते हैं. अगर उसी में हम थोड़ा सा काम करके ना फंड्स क्रिएट करें इन लोगों के लिए, ताकि जैसे सपोज कोई एडिक्ट है उसको हम खुद ही भेज रहे हेल्थ सेंटर्स में, जैसे मेडिकल शॉप्स हर एक मोहल्ले में अवेलेबल होते हैं, वैसे हेल्थ. एंड इसमें कोई शेम नहीं होना चाहिए. इफ समबडी इज एडिक्टेड ही शुड टेल मी सामने से कि मैं एडिक्ट हूँ. मुझे जैसे हमारे पास एडिक्ट आते थे जिससे कि यू नो महविश आई एम एडिक्टेड, आई एम दिस, तो वी ट्राई टू क्रिएट फंड्स फॉर देम. उनको हम हेल्थ सेंटर भेजते. अभी सोशल एक्सेप्टेंस उतनी नहीं है कि हम ओपनली उनको प्लेटफॉर्म्स पे लाए, बट वी आर ट्राइंग. जैसे मैं ट्राई कर रही हूँ उनको ओपन प्लेटफॉर्म पे लाने की, बट सोशल एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड इंस्टेड ऑफ हेटिंग देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर साइड ऑफ स्टोरी. थैंक यू सो मच.